السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج علم البلاغہ کی 10ویں کلاس ہے۔ آج کی کلاس میں ہم لوگ پڑھیں گے الغرض المقصود من التشبیہ، یعنی تشبیہ دینے سے غرض مقصود کیا ہوتا ہے۔ آپ کو پتہ ہے کہ تشبیہ میں ایک مشبہ ہوتا ہے اور دوسرا کیا ہوتا ہے، مشبہ بھی ہوتا ہے۔ تو تشبیہ دینے سے غرض مقصود کیا ہوتا ہے، اس کے سوالات اگر آپ بی اے آنرس عربک کر رہے ہیں تو اس کے فائنل ایئر میں بھی پوچھا جاتا ہے، اسی کے ساتھ ماسٹر میں بھی، اور اگر آپ نیٹ جے آر ایف کی تیاری کر رہے ہیں تو اس میں بھی اس طرح کے اشعار آتے ہیں اور پوچھا جاتا ہے کہ یہاں جو تشبیہ دی جا رہی ہے اس کا غرض مقصود کیا ہے۔ ٹھیک ہے، چلیے ہم لوگ چلتے ہیں، ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ جیسا کہ آپ کو دکھ ہی رہا ہے، اس میں ایک ہے بیان حال مشبہ، اسی کے ساتھ بیان امکانی حال مشبہ، پھر ہے بیان مقدار حالہ ای حال مشبہ، پھر آگے ہے تقریر حالہ ای تقریر حال مشبہ، پھر ہے تزئینہ ای تزئین حال مشبہ، آگے ہے تحجینہ ای تحجین حال مشبہ، پھر ہے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے اس کو بدل دیا جاتا ہے، یعنی مشبہ کی جگہ مشبہ بھی غرض مقصود ہو جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، ان سب چیزوں کو ہم لوگ ڈیٹیل سے دیکھیں گے۔ چلیے ایک ایک کر کے دیکھتے ہیں۔ یہ جو سلائیڈ دکھ رہی ہے یہ نظام اکیڈمی 22 کر کے آپ لوگوں کا ٹیلی گرام چینل ہے، اس سے اگر آپ جڑے نہیں ہیں تو جڑ جائیں۔ یہاں آپ کو پی ڈی ایف دے دی جائے گی، آپ اس کا ریویژن کر سکتے ہیں۔ اسی کے ساتھ نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں، لائک کریں، کمنٹ کریں، دوستوں کو بھی شیئر کر دیں۔ بہت سے لوگ ڈسٹینس سے ماسٹر کر رہے ہیں، جیسے مولانا آزاد سے بھی عربک میں ایم اے ہو رہا ہے، اور الحمدللہ اس سال سے آپ دیکھیں گے اگنو نے بھی ماسٹر شروع کیا ہے، یعنی ایم اے ان عربک۔ ٹھیک ہے، کیونکہ عربک آپ کو پتہ ہے ایک انٹرنیشنل لینگویج ہے۔ چلیے آگے چلتے ہیں۔ پہلا دیکھتے ہیں الغرض المقصود من التشبیہ یعود فی اکثر الامر الی المشبہ، یعنی تشبیہ دینے سے جو غرض مقصود ہے وہ اکثر حالت میں کدھر لوٹتا ہے، مشبہ کی جانب۔ ٹھیک ہے، اب وہ کیا ہوتا ہے، کس لیے تشبیہ دی جاتی ہے، ایک ایک کر کے ہم دیکھتے ہیں۔ پہلا ہے بیان حالہ ای حال مشبہ، جیسے اس کا قول، یعنی کما فی قولہ، جیسا کہ شاعر کہہ رہا، کیا کہہ رہا ہے اس کو دیکھیے، اذا قامت لحاجتها تسنت کأن عظامها من خیزران۔ یعنی شاعر یہاں اپنی محبوبہ کی تعریف کر رہا ہے کہ اذا قامت لحاجتها، کہ جب میری محبوبہ کسی ضرورت کی وجہ سے جھکتی ہے، یعنی کھڑی ہوتی ہے، قامہ یقوم مطلب ہوتا ہے کھڑا ہونا، اذا قامت لحاجتها تسنت، جب وہ بیٹھی رہتی ہے، بیٹھ کر کے کھڑی ہوتی ہے تو اس کے کمر میں ایک لچک پیدا ہو جاتی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کأن عظامہا، یعنی اس کی جو پسلی، یعنی اس کی جو پیچھے والی جو ہڈی ہے، گویا کو ہڈی اتنی ملائم ہے، من خیزرانی، خیزرانی آپ دیکھیں گے اس کو اردو میں دیکھیں گے تو کہتے ہیں نرکل کو، کس کو کہتے ہیں، نرکل۔ پہلے لوگ جب قلم یعنی بنایا کرتے تھے تو نرکل کی بھی قلم گڑھ کر کے اس سے لکھتے تھے۔ ٹھیک ہے، آپ نے بچپن میں دیکھا ہوگا، اس میں بہت زیادہ لچک پائی جاتی ہے، تو اس سے تشبیہ دے رہا کون، شاعر، کہ اذا قامت لحاجتها تسنت کأن عظامها من خیزران، تو یہاں تشبیہ دیا ہے اس کے
शब्बह एज़ामहा यानी उसकी जो हड्डी है, यानी जो उसकी कमर की हड्डी है, उसकी तशबीह दी है किससे? बिल खैजुरानी, खैजुरान से यानी नरकुल से। क्यों? बयानन लिमा फ़ीहा मिनल लीनी, क्योंकि जिस तरह नरकुल में बहुत नरमी होती है, लचकदार होता है, इसी तरह मेरे महबूबा की कमर भी है। ठीक है, समझ में आ गया होगा शेर। आगे चलते हैं। आगे है औ बयानु इम्कानी हाली ही, यानी हाली ही ऐ हाली मुशब्बा, यानी मुशब्बा के हालत के इम्कान को बयान करने के लिए। ठीक है, गर्ज़ मकसूद होता है तशबीह से। क्या है? क़ौली ही, जैसे कि शायर ने एक शेर कहा। क्या है? वैलाहु, वैलाहु आपको पता है, वैलाहु यानी बर्बादी ही बर्बादी है, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में यूज़ होता है, ताज्जुब वाले में। वैलाहु यानी बर्बादी ही बर्बादी है, इन नज़रत अगर वो देखती है, व इन हिया आरज़त या वो अपनी नज़र को फेरती है। ठीक है, यहाँ महबूबा कह रहा है कि मेरी महबूबा चाहे वो मुझे देखती है या देखने के बाद अपनी नज़र हटाती है, क्या है? दोनों बर्बादी है। क्यों बर्बादी है? वक़ुउस सिहामी व नज़उहुन्ना अलीमु, वक़ुउस सिहामी, सिहाम का मतलब होता है तीर, यानी तीर का वाक़े होना यानी चुभना लगना। व नज़उहुन्ना, और तीर अगर बदन में चुभ जाए फिर उसको निकालना, दोनों में तकलीफ़ होती है। अलीमुन यानी दोनों में दर्द होती है। तो यहाँ महबूब क्या कह रहा है कि जब महबूबा हमें देखती है तो गोया कि वक़ुउस सिहामी यानी अपनी नज़रों से गोया कि उसने तीर को चुभो दिया है। ठीक है, और वनज़उहुन्ना, और जब मुझसे अपनी नज़र को हटाती है तो ऐसा लगता है गोया कि वो तीर जो उसने चुभोया है अब उसको निकाल रही है। ठीक है, तो बयानी इम्कानी हाली मुशब्बा, यानी मुशब्बा की इम्कान, यानी इस इम्कान को बयान करने के लिए लाया जाता है कि जब उसने देखा गोया कि तीर मार दिया, जब वो नज़र हटा रही है तो गोया कि वो तीर जो है जो चुभी हुई उसको निकाल रही, दोनों में तकलीफ़ होती है। ठीक है, इसी को कहा गया है शब्बहा नज़रहा बिवक़्इस सिहामी व एराज़िहा बिनज़इहा बयानन लिइम्कान इलामिहा बिहिमा जमीअन, यानी जो इसकी तशबीह दी है शायर ने, किससे दी है? वक़ुउस सिहाम यानी तीर का वाक़े होने से, और किससे? व एराज़ुहा, और जब वो नज़र फेरती उसको किससे किया है? वो तीर के निकालने से। बयानन लिइम्कान इलामिहा, क्योंकि दोनों में तकलीफ़ के इम्कानात पाए जाते हैं। ठीक है, उम्मीद है कि पूरा शेर आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, जो ना समझ में आए एक नोटबुक रखिए, आप शेर का माना और उसी के साथ एराब भी लगा लीजिए। ठीक है, ताकि इम्तिहान में आपको फ़ायदा मिलेगा। आगे क्या है? औ बयानु मिक़दारी हालिही, यह बयानु मिक़दारी हालिही यानी हाली मुशब्बा, यानी मुशब्बा के हालत के मिक़दार को बयान करने के लिए कभी तशबीह दी जाती है। जैसे कि इस शेर में का क़ौलिही फ़ी हसनतानी व अरबऊना हलूबतन, इस नतानी व अरबऊना कहते हैं 42 को। फ़ीहा यानी शायर कह रहा, फ़ीहा यानी महबूबा, यानी महबूबा के घर पे, यानी महबूबा के पास इसनतानी व अरबऊना यानी 42 हलूबतन यानी दुधारी ऊँटनियाँ हैं। ठीक है, और ऊँटनी क्या है? सूदन, वो काली हैं, क्योंकि माना जाता है जो ऊँटनी काली होती है वो बहुत अच्छी किस्म की मानी जाती है। ठीक है, तो शायर क्या है? अपनी महबूबा की मालदारी की तारीफ़ कर रहा है। फ़ी हसनतानी व अरबऊना हलूबतन, यानी उसके पास 42 दुधारी ऊँटनियाँ हैं, सूदन, और वो क्या हैं? काली हैं। फिर उस काली की तशबीह किससे ज़रा देखिए, कख़ाफ़ियतिल ग़ुराबिल असहमी,
देखिए खाफिया मतलब होता है कौवे के अंदर वाले पर। आप देखेंगे कौवा एक ऊपर का पर होता है जिसको फैला करके उड़ता है, उस पर के अंदर एक पर होता है जो ऊपर वाले पर को सपोर्ट करता है। कौवा आपको पता है कि काला होता है, लेकिन उसके अंदर वाला पर इंतहाई काला होता है। तो इसलिए कखाफियतिल गुराबिल असहमी, यानी गुराबिल असहमी, असहम माने स्याह यानी काला, काले कौवे के अंदरूनी पर की तरह। ये जो ऊँटनियाँ हैं महबूबा की 42 वो उस तरह काली हैं। ठीक है। सब बहा अन्याक, न्याक कहते हैं जैसे नाकतुन की जमा है। ठीक है, नाकतुन की जमा न्याक है। सब बहा यानी शायर ने तस्वीर दी है ऊँटनी, अन्याक सूद यानी काली ऊँटनियों की, किससे? बिखाफियतिल गुराब यानी कौवे के अंदर वाले पर से, बयानन लिमिक़दारी सवादिहा यानी उसके कालेपन के मिक़दार को बयान करने के लिए। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं। चौथा क्या है? औ लितक़रीर हालिही, आई हाल मुशब्बा यानी मुशब्बा के हालत को बिठाने के लिए, तकरीर यानी दिल में बिठाने के लिए। जैसे शायर शेर कह रहा क्या? इन्नल कुलूबा इज़ा तनाफराउद्दुहा मिस्लु ज़ुजाजती कसरुहा ला युजबरू, मजहूल पढ़ा जाएगा, ला युजबरू। इन्नल कुलूबा बिला शुबहा दिल, इज़ा तनाफराउद्दुहा जब उसके मोहब्बत में दरार पैदा हो जाती है, यानी किसी वजह से दिल टूट जाता है। ठीक है, यानी मोहब्बत में खटास पैदा हो जाती है। इन्नल क़ुलूब इज़ा तनाफराउद्दुहा बिला शुबहा दिल, जब उसके मोहब्बत में थोड़ा सा नफ़रत आ जाती है, उसकी मिसाल क्या दी है? यानी किसी से अगर दिल टूट जाता है उसकी मिसाल दी है, किससे? मिस्लु ज़ुजाजती, तो इसकी मिसाल एक शीशे की तरह है। कसरुहा ला युजबरू, अगर शीशा टूट जाए तो दोबारा उसको जोड़ा नहीं जा सकता। इसी तरह अगर किसी से दिल टूट जाए तो दोबारा उसको जोड़ा नहीं जा सकता है। ठीक है, उम्मीद है कि समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ सब बहा तनाफरल क़ुलूब बिकसर ज़ुजाजा, यानी दिल की नफ़रत की तस्वीर दी है, किससे? शीशे के टूटने से। तक़रीरन लितअज़्ज़ुरी औदतिहा, इस चीज़ को बैठाने के लिए कि उसका लौटना नामुमकिन है। इला मा कानत अलैहि मिनल उन्सी, यानी जैसे किसी से पहले मोहब्बत थी, जो उनसियत थी, उस उनसियत तक लौटना कब? यानी दिल के टूटने के बाद नामुमकिन है। किस तरह? जिस तरह शीशा अगर टूट जाए दोबारा उसको जोड़ा नहीं जा सकता। ठीक है, बहुत अच्छा शेर कहा शायर ने। आगे चलिए, 5वें नंबर पे है औ तज़ईनुहु, आई तज़ईनु मुशब्बा, ये मुशब्बा की खूबसूरती बयान करने के लिए। का कौलिही, जैसे समराउ, समराउ यानी थोड़ा सा सांवली होना। देखिए जो बहुत गोरा होता, आप देखेंगे अंग्रेज़ बहुत गोरे होते हैं, उनके ख़वातीन को आप देखेंगे चेहरे पे कशिश नहीं रहती। ठीक है, लेकिन जो थोड़ा सा गोरा रहता है लेकिन थोड़ा सा गेहुआ कलर का होता है, ठीक है, तो उस कलर में बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन पाया जाता है। तो उसको शायर कह रहा समराउ, यानी जो मेरी महबूबा है थोड़ा सा सांवली टाइप है। ठीक है, समराउ यानी गेहुआ कलर की है। वाज़िहतुल जबीनी, उसकी जो पेशानी है बिल्कुल वाज़ेह है, यानी चमक रही है। अब उसके पेशानी की तस्वीर किससे दी है? कमुक़लत ज़बील गरीरी, ज़बी
यानी हिरन, गरीरी यानी खूबसूरत हिरन के मुकला, मुकला मतलब होता है आँख की पुतली, ठीक है। यानी खूबसूरत हिरन के आँख की पुतली की तरह क्या है महबूबा, क्या है समराऊ, यानी गेहुआ कलर की है, यानी सांवली टाइप है। वाज़िहतुल जबीनी यानी उसकी पेशानी क्या है बहुत ज़्यादा वाज़ेह है, ठीक है। तो यहाँ क्या है यानी मुशब्बा की खूबसूरती को बयान कर रहा है, ठीक है। आगे चलिए। औ तहजीनी ही ऐ तहजीन मुशब्बा, मुशब्बा की हिजो बयान करने के लिए कभी कभी भी इस तरह से मुशब्बा और मुशब्बा भी ही लाए जाते हैं। जैसे व इज़ा अशार मुहद्दिसन फ़कअन्नहु, यानी वो किसी की हिजो कर रहा, शायर कह रहा है, जब वो इशारा करता है बात करते हुए, फ़कअन्नहु तो गोया कि ऐसा लगता है, क़िरदुन युक़हक़िहु यानी वो बंदर है जो कि कहकहे लगा रहा है। आप देखेंगे बंदर जब हंसता है तो बहुत अजीब तरह की शक्ल उसकी लगती है, तो उससे तस्वीर दे रहा है, ठीक है। क़िरदुन युक़हक़िहु बंदर है जो कि कहकहे लगा रहा है। औ अजूज़ुन तुलतम्मु या ऐसी बूढ़िया जिसको चाटा मारा जा रहा है। अगर कोई बूढ़ी औरत है तो उसके चेहरे में उसके जो खाल है वो सब लटक जाती है, उसमें यानी बहुत ज़्यादा वो आ जाता है, जिन्हें झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, और उस पर अगर कोई चाटा मारे तो तब उसका चेहरा और बिगड़ जाता है। तो उससे बयान किया है किसने, शायर ने। उसके बात करने की तस्बीह दी है कि गोया कि वो बंदर जब हंसने लगता है या कोई बुढ़िया जिसको चाटा मारा जाए, ठीक है। तो उम्मीद है समझ में आ गया होगा। आगे चलिए। कभी कभी क्या है वक़द यू कसु तस्बीह, कभी तस्बीह को पलट दिया जाता है। क्या होता है फ़यऊदुल गरज़ मिन्हु इलल मुशब्बा भी, कभी कभी गर्ज़ मक़सूद मुशब्बा भी होता है। जैसे कि इस शेर में वह बदस सबाह यानी सुबह नमूदार हो गई, बदस सबाहु कअन्ना गुर्रतहु गोया कि उसकी पेशानी, यानी सुबह की पेशानी किसकी तरह है, वजहुल खलीफा यानी खलीफा जो बादशाह है उसके पेशानी उसके चेहरे की तरह है। हीन युम्तदहु जिस वक़्त उसकी तारीफ़ की जाए, यानी जब खलीफा की तारीफ़ की जाती है तो उसका चेहरा बहुत खूबसूरत एकदम खिल जाता है। तो उस तरह सुबह जब नमूदार होती है उसका चेहरा लगता है। हालांकि ये उलट दिया गया है। अक्सर क्या होता है कि जिससे तस्बीह दी जाती है उसमें वो क्वालिटी ज़्यादा पाई जाती है। तो सुबह जब रोशन होती है उसमें और किसी के पेशानी की चमक, दोनों से तस्बीह देना थोड़ा सा वो उल्टा लगता है। लेकिन कभी कभी ऐसा भी किया जाता है मुबालगा आराई की वजह से, ठीक है। शब्बह गुर्रत सबाह बिवजहिल खलीफा यानी सुबह, यानी सुबह की चमक को तस्बीह दिया है खलीफा के चेहरे से। ईहामन लिकौनिही अतम मिन्हा फी वजह शिब, क्योंकि वजह शिबह में वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, इसलिए उलट दिया गया है। क्योंकि यहाँ बताना ये चाह रहा है कि जो सुबह की रोशनी है वो खलीफा के चेहरे की तरह है, ठीक है। ये बिल्कुल उलट दिया गया है, ठीक है, मुबालगा आराई की गई है। आगे चलिए, उम्मीद है कि समझ में आ ही गया होगा। यानी बदस सबाह का अन्ना गुर्रतहु वजहुल खलीफा हीना युम्तदहु। कभी कभी क्या होता है तस्बीह नहीं कुछ और मुराद होता है। क्या है, वक़द युरादु अलजमा बैन शैअइन फ़ी अमरिन यस्तवियानि फ़ीही फ़युतरकु तस्बीह क़ज़ाअन बित्तसावी दून तरजीह। कभी कभी तस्बीह यानी मुशब्बा मुशब्बा बिही के बीच में तस्बीह को हटा दिया जाता है, बल्कि बराबरी को, दोनों एक दूसरे के बराबर हैं,
اس کو بتانے کی کوشش کی جاتی ہے، جیسے کہ اس شعر میں ان لحنا کہتے ہیں لاح یلوح، مطلب ہے کہ باہر نکلنا، ظاہر ہونا، ان لحنا یعنی جب حسینائیں رات میں نکلتی ہیں، لاح یلوح یعنی رات میں نکلنا، رات کی تاریکی میں نکلنا، لاح یلوح لحنا یعنی جمع مؤنث غائب کا صیغہ ہے، ان لحنا جب نکلتی ہیں حسینائیں، والشہب الثواقب یعنی اور روشن ستارہ، فی الدجا یعنی تاریک رات میں، کہتے ہیں کہ تاریک رات میں حسینائیں نکلتی ہیں، اور رات جب تاریک ہوتی ہے تو سحاب ثاقب یعنی سحاب ثاقب بھی جو ہے کیا نمودار ہوتا ہے، لم یدری سارن، ایسی رات میں اگر کوئی چلے تو چلنے والا یہ نہیں پتا پاتا ایہن انجمو کہ دونوں میں سے کون زیادہ روشن ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں حسیناؤں کی چمک اور سحاب ثاقب کی چمک دونوں میں ایکولیٹی یعنی دونوں میں تساوی یعنی مساوات کو بیان کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو غرض مقصود کے علاوہ اکثر غرض مقصود کیا ہوتا ہے؟ مشبہ، کبھی کبھی پلٹ دیا جاتا ہے یعنی مشبہ بھی مان لیا جاتا ہے، اور کبھی کبھی مشبہ یعنی تشبیہ ہٹا کر کے دونوں میں کیا تساوی یعنی مساوات کو بیان کرنا مقصود ہوتا ہے۔ تو اس طرح سے مجھے امید ہے کہ آپ کو پوری طرح کلاس سمجھ میں آئی ہوگی۔ اگر اس کا کوئی بھی شعر اگر آپ کا UGC نیٹ JRF میں آ جاتا ہے تو امید ہے کہ انشاءاللہ آپ صحیح کر کے آئیں گے کہ اس میں کس کی تشبیہ دی جا رہی ہے، اور غرض مقصود میں سے کیا ہے، کیا اس کی حسن بیان کیا جا رہا ہے یا تقریر ہے یا امکان حال مشبہ ہے، جیسا کہ آپ نے ساری چیزیں اس میں ایک ایک کر کے میں نے آپ کے سامنے بیان کی، یعنی 6 ہیں ٹوٹل۔ اس کے بعد 2 صورت اس طرح کی نکلتی ہے کہ کبھی الٹ دیا جاتا ہے، کبھی دونوں میں مساوات کو بیان کیا جاتا ہے، ٹوٹل ملا کر کے 8 صورتیں غرض مقصود کی بنتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو امید ہے کہ پوری طرح سمجھ میں آیا ہوگا۔ جاتے جاتے آپ لائک کر کے ضرور جائیں، اسی کے ساتھ کمنٹ کریں، شیئر کریں، نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اگر اس طرح سے سمجھ کے آپ پڑھیں گے، کیونکہ اگر علم البلاغہ آپ نے سیکھ لیا تو آپ قرآن و حدیث بھی خاص طور پر قرآن بھی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو یہ نظام اکیڈمی 22 کر کے ٹیلی گرام چینل ہے، اس سے بھی آپ جڑ سکتے ہیں۔ آج کی کلاس میں اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی کلاس میں نئے ٹاپک کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ مع السلامہ۔